Good morning, 8th class. Last time we had discussed about prose 1 and we had also done the chapter reading of How Teachers Learn. And I just want to remind you all that we had also done the reading of poem A Nation's Strength. This time I am taking you a short story number 1, that is The Unthankful Man. And before I start the story, I just want to tell you that this is a very interesting story and I hope you all will enjoy reading with me. And so let's start it now. So before I start the book reading, I just want to introduce that this story is about Raman, who's a poor Brahmin. He's a poor Brahmin and he lives with his wife in a village, and that village is on the outskirts of a small town. He is so poor that he and his wife has to remain hungry together, and he was so fed up with his poverty that one day his wife asked him to leave that village so that he can go outside the village towards the town to find a work that is suitable for him so that he can earn some money and they can run their household expenses. So Raman goes out for finding a new job, and during his travel he find a well, and in that well he found four creatures, in which one was goldsmith, another was a monkey, and another was a tiger and a snake. And how did he help them and what happens after it, we will sort it out and we will read it out in this chapter. So let's start it out now. And so here is the page number 1 of your chapter, that is The Unthankful Man. And here it is written that this is a story about thanklessness. This story is about thanklessness, in which a person is not thankful for what favor he has got from a person. So इसमें आपको बताया हुआ है, ये एक स्टोरी है जो थैंकलेसनेस के बारे में है. थैंकलेसनेस क्या होता है? अगर हम किसी की हेल्प करें, वो हमारी उस हेल्प को बिल्कुल भी ना समझे और उस हेल्प का वो बिल्कुल भी ना समझ बन के उसको भूल जाए, उसको थैंकलेसनेस कहा जाता है. एहसान फरामोशी बोलते हैं इसको, उर्दू का वर्ड है कि जो मैंने आपको बताया, एहसान फरामोश. तो नेक्स्ट आपको बताया है रमन, जो मैंने आपको बता चुका हूँ. रमन एक इज़ अ पोअर मैन इन द स्टोरी ऑफ द हेल्पफुल पर्सन. रमन वो इस स्टोरी में एक हेल्पफुल पर्सन है. ही हेल्प्स द टाइगर, वो टाइगर की मदद करता है, मंकी की मदद करता है और एक गोल्ड स्मिथ की मदद करता है और स्नेक की भी करता है, जो यहाँ पे लिखी नहीं है. द टाइगर एंड द मंकी प्रूव टू बी थैंकफुल क्रिएचर्स. यहाँ पे टाइगर, मंकी और स्नेक भी उसकी मदद करते हैं, पर जो गोल्ड स्मिथ होता है वो यहाँ पे लिखा है ब्रेजन शो. ब्रेजन शो का मतलब होता है बेशर्म शो, जिसमें एक इंसान को बिल्कुल भी उसकी शर्म ना हो, तो वो वहाँ पे बिना शर्म करे हुए वो क्या करता है, अपनी थैंकलेसनेस शो करता है. थैंकलेसनेस वही एहसान फरामोशी, जिसको आप कृतज्ञता बोलते हो हिंदी में, प्योर हिंदी में. और डिसीट का मतलब होता है धोखा, जिसमें वो अपनी थैंकलेसनेस और धोखा दिखाता है. इस स्टोरी को पढ़ेंगे हम और हमें इसका मॉरल भी खुद से फाइंड करना है. So, let's start it out now. Raman was a poor man who lived with his wife on the outskirts of a small town. रमन जो था वो एक पोअर ब्राह्मण था जो अपनी वाइफ के साथ एक बाहरी इलाका था टाउन का, वहाँ पे रहता था. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she asked to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for some job. तो क्या होता है यहाँ पे, रमन और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा गरीबी में रहते हैं और एक दिन क्या हो जाता है, और उनको बहुत दिन भूखे भी रहना पड़ता है. तो एक दिन क्या होता है कि रमन से उसकी वाइफ बात करती है और वो कहती है कि क्यों ना तुम पास के कस्बे में जाओ और वहाँ पे कोई जॉब ढूंढो. रमन लाइक द आइडिया एंड डिसाइडेड टू गो टू ए नियर बाय टाउन टू लुक फॉर सम जॉब. रमन को आइडिया पसंद आता है और रमन क्या करता है, टाउन को निकल पड़ता है अपनी जॉब में.
On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear voices coming out from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake and a man in the well. क्या होता है, जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है और वो थक भी चुका होता है और उसको भूख भी लगी होती है, तो इतने में वो क्या करता है, वहाँ से कुछ जंगली फ्रूट्स इकट्ठे करता है और एक कुएं के पास बैठ के उनको खाने के लिए रेडी हो जाता है। इतने में उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें आ रही होती हैं कुएं से। तो वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो क्या करता है, कुएं में झांक के देखता है। पीप्ड मीन्स झांकना। टू हिज सरप्राइज ही सॉ अ टाइगर। उसके सरप्राइज में उसको वहाँ पे दिखाई देता है एक टाइगर, एक मंकी होता है, एक स्नेक होता है और एक मैन होता है। ये 4 क्रिएचर्स उसको वेल में दिखाई देते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी है, जो मैंने आपको भी एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई थी। तो ये यहाँ पे 4 पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ये एक वेल बना हुआ है। इस वेल में एक इंसान है, एक टाइगर है और एक मंकी है और एक स्नेक है। तो यही 4 क्रिएचर्स रमन को वहाँ पे दिखाई देते हैं। नाउ व्हाट will happen next, we will read it out now. The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for this kind act of yours." Raman was frightened. He said, "If I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are." तो यहाँ पे क्या होता है, टाइगर जब देखता है तो वो रमन को बोलता है कि सर प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे कुएं से बाहर निकालो। आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा जो आपने ये काइंड, ये दयालु वाला एक्शन अगर आप करोगे। पर रमन वहाँ पर डर जाता है। वो बोलता है अगर मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा, यू विल ईट मी अप, तुम मुझे खा जाओगे। देयरफॉर आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, यू रिमेन वेयर यू आर। वो कहता है इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो। द टाइगर सेड, हैव फेथ इन मी, आई प्रॉमिस दैट आई विल डू नो हार्म टू यू. On the other hand, I will try to help you. Please help me out. Raman was a kind man. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. Thank you, kind man. The tiger said to him, if you ever need my help, please come to my cave. But mind you, don't take that man out of the well. He is the most ungrateful creature on this earth. अब रमन को तरस आ जाता है उस टाइगर पे, तो वो कहता है कि यहाँ पर टाइगर जवाब देता है, रमन को बोलता है मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आप मुझे जब बाहर निकालोगे मैं आपकी और मदद करूँगा आने वाले टाइम पे, तो प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। तो वहाँ पे रमन को दया आ जाती है। रमन क्या करता है और उसको बाहर निकाल देता है उस वेल से। और वहाँ पे टाइगर उसको थैंक यू बोलता है। और थैंक यू बोलने के बाद टाइगर एक वार्निंग देता है, बोलता है कि आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरी गुफा के पास आ जाइएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो इंसान इस वक्त वेल के अंदर है, प्लीज़ इसकी मदद मत करना, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर। ये बहुत ही एहसान फरामोश इंसान है। सेइंग द टाइगर वेंट अवे फ्रॉम देयर। एज सून एज द टाइगर वेंट अवे, द मंकी कॉल्ड आउट टू रमन एंड सेड, काइंड मैन, दिस वेल इज टू स्टीप, I can't climb out of it. Please help me out. Raman readily pulled out the monkey. The monkey also thanked Raman and said, if you ever need my help, please come to the mango tree by the river outside this jungle. तो यहाँ पे क्या होता है, मंकी आवाज़ देता है रमन को, बोलता है कि तुमने टाइगर को तो निकाल दिया, प्लीज़ मेरी भी मदद करो। ये जो कुआं है ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, ढालुआ है, इस पर मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। अब रमन को लगता है कि मंकी क्या नुकसान पहुँचाएगा, वो मंकी को रेडली वहाँ से जल्दी से बाहर निकाल देता है। और मंकी भी रमन को बोलता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी सो प्लीज़ मुझे जो वहाँ पे समुंदर का जो किनारा है, जो समुंदर का जो किनारा है वहाँ पे, वहाँ से तुम मुझे आवाज़ दे देना, ठीक है। नदी का किनारा है, सॉरी समुंदर का, नदी का किनारा है, तो मुझे वहाँ पे आवाज़ दे देना। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अब आप देख रहे हो जो वेल है, वेल में आपको 4 क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं। 4 में से 2 इन्होंने क्रिएचर्स रमन ने निकाल दिए होते हैं, एक तो है टाइगर और दूसरा है मंकी। अब वेल के अंदर रह जाता है स्नेक। और आगे पढ़ते हैं व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सो उसके बाद क्या होता है, ही देन एडवाइज्ड
not to pull the man out of the well. He is a very ungrateful creature. Don't listen to him. Then the monkey went away. मंकी भी रमन को सेम एडवाइस देता है कि जो क्रिएचर उसके वेल के अंदर है उसको वो बाहर ना निकाले. Raman had hardly sat down to eat the wild fruits when the snake called out to him, "Please, kind sir, help me out of the well and save my life." Raman was scared of the snake. He said, "If I pull you out of the well, you may bite me and I will die." तो रमन अब खाने बैठा होता है वहाँ पे, उसको थोड़ी देर में स्नेक की आवाज़ आती है. स्नेक बोलता है कि हे दयालु इंसान, मेरी मदद करो, मुझे वेल से बाहर निकालो. अगर आप मुझे वेल से बाहर निकालोगे तो मैं आपका बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँगा. लेकिन रमन बोलता है कि मैं डरता हूँ तुमसे. रमन डर जाता है. रमन सोचता है अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा ये मुझे काट देगा और तुम मुझे काट दोगे और जिसकी वजह से मैं मर जाऊँगा. द स्नेक सेड, "प्लीज़ हैव नो फेयर. आई शैल कॉज यू नो हार्म." Raman took pity on the snake and pulled him out of the well. The snake also thanked him and said, "If you need my help, just call out to me. I shall be there to help you. But don't listen to that ungrateful man. Don't pull him out of the well." So saying, the snake slithered away. When the snake went away, the man came out to Raman. He said, "Please help me out of the well and save my life." Raman thought, what harm can this man do to me? Then he pulled him out of the well. अब क्या होता है यहाँ पे, स्नेक बोलता है कि आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. और रमन को स्नेक पे तरस आ जाता है. रमन स्नेक को वेल से बाहर निकाल देता है. स्नेक भी जिस तरह से बाकी क्रिएचर्स ने रमन को थैंक यू बोला होता है वो भी थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं अगर आपको कभी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी हेल्प करे हमेशा वहाँ पे आ जाऊँगा. बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन. पर जो वो अनग्रेटफुल मैन है उसकी मदद बिल्कुल नहीं करना, उसको वेल से बाहर मत निकालना. ये सुन के स्नेक स्लीदर करके रेंगते हुए चला जाता है. द स्नेक जाने के बाद रमन को और आवाज़ आती है एक इंसान की और वो भी इंसान रमन को बोलता है कि प्लीज़ मुझे वेल से बाहर निकालो. लेकिन रमन ये सोचता है ये एक इंसान है, ये मुझे क्या नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसीलिए मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ. तो रमन उसको बाहर निकाल देता है और वो मैन रमन को थैंक यू बोलता है और बोलता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ बाय प्रोफेशन के. सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे. रमन रीच द नियर बाय टाउन. फॉर सेवरल डेज ही ट्राइड टू फाइंड अ जॉब बट ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड. ही फेल्ट डिप्रेस्ड. ही डिसाइड टू गो बैक होम. रमन अब क्या करता है, वो इंसान रमन को जाते जाते बोलता है कि मैं वाराणसी में मेरा व्यापार है, मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं एक सुनार हूँ और जब भी आपको मेरे काम की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करने के लिए आप मेरे पास आ जाना, मैं आपका काम कर दूंगा. तो रमन अब क्या करता है, बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रहता है. उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, उसको जॉब भी नहीं मिलती है और बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है. ही फेल्ट डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराश हो जाना. रमन निराश हो जाता है और वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अब घर पे ही चला जाऊँ. तो रमन घर जाने की अब तैयारी में है. तो क्या होता है इसके आगे, वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. I hope you all had enjoyed reading with me and I hope you all have understood every aspect of this book reading. So thank you for listening to me and we will continue this tomorrow. So thanks and have a nice day.